Good morning, students. We are back after holidays. I hope you have enjoyed holidays, but now it's time to come back to our studies. Today we'll be starting with our English literature chapter number 1, that is Meeting Susan. I hope you all are ready with your textbooks. English First, Gulmohar, the 9th edition, and English Grammar, Grammar Mentor. Okay, now we'll start with chapter number 1, Meeting Susan. Before starting the chapter, I'd like to tell you that you should be ready with your textbook and your pencils in your hand so that you can mark the hard words as well as the word meanings that are being given to you. Now, Meeting Susan. This chapter is a story how a person meets a painter, what all does the person and his friends or the other people do, and how, what and when does all the incidents happen and what we take. So now we'll start with the chapter. Meeting Susan. Flipping through his mother's book. Underline flipping, that means turning the pages. कागजों को पलटना. Flipping through his mother's book, a young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence as painted by the master painter Cézanne. Yannick अपनी माँ की किताब के पन्नों को पलटता है और उसमें Cézanne के द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं उनको देखता है. One summer, he gets a chance to go and spend time with his uncle's family who lived there. एक दिन उसे समय मिलता है और उसे एक चांस भी मिलता है कि वो अपने अंकल के परिवार के साथ जाकर समय बिताए. Yannick soon begins to enjoy his stay, occasionally helping his uncle run the village. Yannick अपने अंकल के परिवार के साथ में बहुत खुश था. वो वहाँ पर हंसी खुशी रह रहा था और उसके अंकल जो कि विलेज के अंदर उस गांव के अंदर एक छोटा सा होटल चलाते थे उसके अंदर उनकी मदद करता है. अंडरलाइन ओकेजनली, दैट मीन्स कभी कभी. वन डे देयर इज अ बसल एट द इन. अंडरलाइन बसल. एक दिन उस इन में कुछ एक अजीब सी घटना घटती है. फॉर अ फेमस मैन द इन्स बेस्ट कस्टमर कम्स विजिटिंग. उस दिन उस होटल में एक बहुत ही मशहूर आदमी जो उस होटल का एक बेस्ट कस्टमर बन जाता है वो वहाँ पर आता है. हु इज दिस मैन एंड व्हाई इज देयर सच अ फस अबाउट दिस. वो आदमी कौन था और उसके बारे में क्यों इतनी हलचल थी, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. That evening, my cousin Amadine told me I had to do everything properly because their best customer was coming to dine with some friends. उस दिन एमेंडन जो मेरी कज़न है उसने कहा कि आज वो अपने कुछ दोस्तों के साथ में यहाँ पर आने वाली है तो उसे होटल के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से चाहिए. He lived in a church in the village, she said, and was very famous. उसने कहा वो एक बहुत बड़े घर के अंदर रहता है और वो आज यहाँ पर आने वाला है और वो एक बहुत मशहूर व्यक्ति है. When I asked what he was famous for, she didn't reply. जब मैंने पूछा वो किस लिए मशहूर है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. Questions, always questions. She tutored. Go and fetch the dog. Underline tutored मतलब बड़बड़ा. हर बार आप सवाल ही सवाल पूछते हो. जाओ जाकर लठ लेके आओ, लकड़ियां हैं उनको इकट्ठा करो. Whoever he was, he looked like an ordinary man without much hair. आखिरकार वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और देखने पर वो एक सामान्य सा व्यक्ति नजर आता है. But I felt very pleased when the famous man ate one of my crème brûlée. मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे द्वारा बनाए गए crème brûlée को खाया. After the man and his guests left, we began to clear the table. उस आदमी और उसके दोस्तों के जाने के बाद में हमने उस टेबल को साफ किया. I pulled the paper tablecloth, crunched it and threw it into the fire as usual.
अंडरलाइन स्क्रंच्ड, स्क्रंच मतलब इकट्ठा करके मड़ोड़ कर फेंकना। उस आदमी और उनके दोस्तों के जाने के बाद में मैंने टेबल को साफ किया, उसके ऊपर रखे हुए टेबल क्लॉथ को हटाया और उसे आग में जला दिया। सडनली एमिनेन वेंट रशिंग पास्ट मी। अचानक से एमिनेन आती है और मुझे धक्का देकर आगे भागती। For some reason, she grabbed the tongs and tried to pull out the remnants of the burning paper tablecloth. Underline grabbed मतलब खींचना, remnants अवशेष या छोटे छोटे टुकड़े। उसने कोशिश की और एक टोंग्स की मदद से, टोंग मतलब किसी चिमटे की मदद से, उसने किसी कारण से उन जले हुए कागजों के अवशेषों को आग से बचाने की कोशिश की। बट इट वाज ऑलरेडी लेट। देन शी टर्न टू मी। पर बहुत देर हो चुकी थी और उसने मेरी तरफ देखा। यू फूल, शी शाउटेड। यू लिटिल फूल। वो जोर से मुझे देखकर चिल्लाती है। पागल आदमी। व्हाट? आई सेड। मैंने कहा क्या हुआ? दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज अ टिप फॉर पापा इफ ही लाइक्स हिज बी। वो आदमी जब भी खाना खाकर जाता है और यदि उसे खाना पसंद आता है तो वो टिप के तौर पर टेबल क्लॉथ पे अपनी एक पेंटिंग बनाकर जाता है। यू वेंट एंड थ्रू इट इनटू द फायर। और तुमने जाकर उस पेंटिंग को आग में जला दिया। ही इज द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड। इडियट, बेवकूफ़ आदमी। वो एक बहुत ही विश्वविख्यात पेंटर था। शी वॉज इन टीयर्स नाउ। अब वो रो रही थी। Everyone in the restaurant stopped eating and went silent. हर एक व्यक्ति जो भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था उसने खाना बंद किया और रेस्टोरेंट के अंदर सन्नाटा छा गया। Then Uncle Bruno came striding towards us. Unlike his jolly self, what is it? He asked Eminem. Underline striding. फिर अचानक से अंकल ब्रूनो आते हैं, हमारी तरफ आगे बढ़ते हैं और एमिनेम से पूछते हैं क्या बात है? It was Yannick, Papa, she cried. He threw it into the fire, the tablecloth, the drawing. पापा, वो यानिक थे और उसने वो पेंटिंग, वो टेबल क्लॉथ आग के अंदर जला दिया। Did you tell him about Eminem? क्या तुमने इसे उसके बारे में बताया था? अंकल ब्रूनो asked. अंकल ब्रूनो ने अपनी बेटी से पूछा। Did Yannick know that he sketches something on the tablecloth and leaves it behind for us? क्या यानिक को पता था कि वो पेंटिंग बनाकर हमारे लिए छोड़कर जा रहा है? Eminem looked at me, her cheeks wet with tears. I thought she was going to lie, but she did. Eminem ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लग रहा था वो झूठ बोलेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। No पापा, she said, lowering her head. उसने कहा, नहीं पापा। Then you shouldn't blame him, should you? For something that was your fault. फिर तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि गलती तो तुम्हारी है। Then you shouldn't blame him, should you? For something that was your fault. Say sorry to Yannick now. Yannick से माफी मांगो। She mumbled it but didn't raise her voice. वो कुछ बड़बड़ाई लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं उठाई। अंकल ब्रूनो put his arm around me. अंकल ब्रूनो ने मेरी गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ रखा। Never mind Yannick, he said. उसने कहा Yannick, कोई बात नहीं। He said he particularly liked his cream roller. उसने कहा उसे तुम्हारा क्रीम रोलर पसंद आया। You made it, didn't you? तुमने कामयाबी पा ली, क्या तुम कामयाब नहीं हुए? So the drawing was for you. वो ड्राइंग तुम्हारे लिए थी। Always look on the bright side. हमेशा सही दिशा में देखो कि उसने तुम्हारे लिए एक ड्राइंग तो बनाई थी। For a moment, you held a drawing that was made for you by the greatest painter in the world. तुम इतना सोचो कि कुछ पल के लिए ही सही एक विश्वविख्यात पेंटर ने तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाई थी और तुमने उसे अपने हाथों में लिया था। That's something you'll never forget. यही वो चीज़ है जिसे तुम कभी भी नहीं भूलोगे। Later on, as I came out of the bathroom, I heard Amanda crying in her room. थोड़ी देर बाद जब मैं बाथरूम से निकल कर आया तो मैंने अमेंडन को अपने कमरे में रोते हुए पाया। I hated to hear her cry, so I knocked on the door and went in. मुझे उसे रोता हुआ देखना पसंद नहीं था, इसलिए
मैं उसके कमरे की तरफ गया और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। आई एम सॉरी, आई सेड, आई डिडंट मीन टू अपसेट। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ। मैंने उससे कहा, सॉरी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। वो अब तक रोना बंद कर चुकी। इट वॉजंट योर फॉल्ट यानी, शी सेड, स्टिल स्निफलिंग अप। अनलाइन स्निफलिंग। उसने कहा, यानिक ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब भी वो थोड़ा थोड़ा सुबक रही थी, रो रही थी। इट्स जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापा क्रॉसेस मी। सिर्फ यही है कि पापा जब मुझसे गुस्सा होते हैं तो मुझे चिढ़ होती है। ही हार्डली एवर इज, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड। पापा मुझसे कभी नाराज नहीं होते हैं, लेकिन जब कभी मैं गलती करती हूँ तो वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। आई शुडंट हैव ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ करो। देन शी स्माइल्ड एट मी। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराई। I lay awake by all night, my mind racing. मैं रात भर जगता रहा और कुछ कुछ सोचता रहा। कुछ बातें मेरे दिमाग में आती रही। Somehow, I was going to make it all right again and make Amandine happy. मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब सब कुछ सही कर दूंगा और Amandine को दोबारा खुश करूंगा। Soon, I had worked out exactly what and how to do it, even when I was going to sing when the time came. मैं मन में ठान चुका था कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, और मैं समय का इंतज़ार कर रहा था। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। विल मीट टुमारो।